सेकंड वीडियो कितना देखा है तूने? आधे से कम। क्यों इतना टाइम दिया था तो कंप्लीट क्यों नहीं हुआ ये टास्क? आदित्य, यस सर। तुम्हारे पास टाइम था, तुमने कंप्लीट क्यों नहीं किया? ओके, कोई बात नहीं. इफ दिस इज डिफिकल्ट फॉर मी and next time if this repeats I'm going to take you out of the group because this is not how I can work. ठीक है, the first question guys, and the first question goes to uh, Aditi. Yes, sir. Which are the two fundamental charged particles and what is the amount of charge on them? Sir, I want to ask this question only. I was asking. I Okay. have not got this answer. Okay, let us ask this to somebody else. Let's see if they can answer. This is the first thing I taught in the video. First thing. Mrinmay, you are next. Mrinmay, which are the two fundamental particles and what is the amount of charge in them? Sir, the two fundamental charged particles are electrons and protons. Very good. And what is the charge on them? Positive for protons and negative for electrons. But what is the amount of charge on them? 1 unit charge. And 1 unit charge. Okay, can you tell me the amount in coulombs? 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Okay, so if it is plus, then it will be the charge on protons. But if it is minus, then it will be the charge on electron. So electron and proton, they both have the same amount of charge on them, plus 1.6 times 10 to the power minus 19 coulomb. But it is positive for protons and negative for electrons. This is the amount of charge on them. And the fundamental charge particles are electrons and protons. You also call this much charge as 1 unit charge because this is the minimum possible charge which can be present on any particle. So this is also known as unit charge. 1 unit of charge. Okay? Did you understand, Aditi? Yes, sir. Aditi, the second question is for you. What is the symbol of charge? Sir, the symbol of charge is Q. Yeah, it can be small q or capital Q depending upon the situation. It is Q. Okay. Next, I want to ask Siddhi, what is Yes, the sir. formula for charge? Q is equal to NE. Very good. Q is equal to NE. Can you tell me what do you mean by N? Integer. Yes, you can say N is the number of charges which are always you can say which are always whole numbers. Yeah, positive integers. Okay, I can write positive integer, that is better. Number of charges हमेशा positive integers के form में होता है. And what is E? Magnitude of charge of electron. Can you tell me how much is that? 1.6 into 10 raised to minus 19. Coulomb. Okay. So this SI unit of charge, let me talk about that. The name of SI unit of charge is coulomb. COLUMB. Actually, it is written as COLOUMB. COLOUMB. Coulomb. Okay. लेकिन इसका जो actual pronunciation है, that is Coulomb. Because it's a French named after a French scientist. Coulomb. ठीक है? Coulomb नहीं बोलना है, Coulomb बोलना है. लेकिन तुम्हारी स्कूल की टीचर या मैं कभी-कभी Coulomb बोल सकता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा इजीली समझ में आता है. Coulomb या Coulomb. ठीक है? So the
unit SI unit of charge is coulomb. Next question, yes. Sir, but the spelling that you gave in the video is different. Yeah, so this is a proper noun and the spelling can differ from books to books. What is the spelling in the video? Sir, I mean, the video it is COULOMB. Is this the spelling? Yes, sir. Yes, sir. My mistake. sir. My mistake. COULOMB. Coulomb. ठीक है, अभी ठीक है? Yes, sir. Thank Yes, you. sir. Kanishka? Yes, sir. Kanishka, tell me how many electrons are present in 1 coulomb of charge? Sir, 6.25 into 10 raised to 18. And how did you find this out? Sir, by using the formula of using that formula of charge Q is equals to NT, so it will be 1 upon 1.6 into आराम 10 से raised to आराम थोड़ा सांस ले लो बीच में, ठीक है? Q is equal to any फॉर्मूला यूज करेंगे. Q की जगह 1 डालेंगे, 1 कूलॉम. N की जगह N ही लिखेंगे और E की जगह 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 19 रख के सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने पे N की वैल्यू आती है 1 अपॉन 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 19 और इसको सॉल्व करने पे आता है 6.25 टाइम्स 10 टू द पावर 18. मतलब एक कूलॉम चार्ज में अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 2 5 के आगे 16 zeros. That's a lot of charges in 1 coulomb of charge. So 1 coulomb of charge is a huge quantity, huge. ठीक है, बहुत बड़ी क्वांटिटी और इतना चार्ज किसी बॉडी पे होना मुश्किल ही है. कभी मुश्किल से इतना चार्ज किसी बॉडी पे होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. और अब हम आ चुके हैं सम very important topics of the chapter electricity. The electricity begins from here. Charul, Miss Charul, please on your cam and आ जाइए मैदान में. On your cam. Yes, please. Are you ready? So guys, I would like to say that मुझे बहुत सारे बच्चों ने नोट्स भेजी है और उनमें से चारुल और कनिष्का भी है नोट्स भेजने वाले. मैंने उनको अप्रिशिएट नहीं किया ग्रुप में क्योंकि मैं वीडियो में उनको अप्रिशिएट करना चाहता था सबके सामने. ठीक है, वेरी गुड वर्क चारुल एंड कनिष्का, बोथ ऑफ यू guys have made good notes. Keep it up. And I really appreciate that you take the task given by me seriously and you really do it. You make it a point that you do it and you get it done. So very nice. Keep it up. Are you happy? Thank you, sir. Very nice. मेरे पास अभी कोई ऐसा फ्लावर बुके या कुछ है नहीं और होता तो भी मैं देता नहीं इतना जल्दी. ठीक है, टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे तभी हम देखेंगे, तभी भी दूंगा नहीं लेकिन देखेंगे. ठीक है, ओके, ऑलराइट, लेट्स गो. इनफ ऑफ फन. मिस चारुल, अगला प्रश्न आपके सामने. कंप्यूटर जी, प्रश्न दिखाया जाए. हाँ जी, देख लिए प्रश्न. एक मिनट, प्रश्न कहाँ चला गया? कंप्यूटर जी बड़े बहुत शैतानी करते हैं कभी हमारे साथ. यस, मिस चारुल, define potential difference. Yes, sir. Define potential difference को define कीजिए. The potential. हाँ जी. The potential difference between 2 points is the amount of work done in moving or one unit positive charge from one point to the another or the other. Very good, very nice. See, इसका जो पूरा स्टोरी है इसके पीछे का महाभारत, वो हमने वीडियो में समझाया है आपको. और आपने जिस तरीके से डेफिनेशन का रट्टा मार दिया, उसका गन्ने का जूस निकाल डाला डेफिनेशन का, वो बहुत हमें पसंद आ गया.
कि बहुत बढ़िया आपने लर्न कर लिया, बिकॉज ये डेफिनेशन ना इट इज, आई टोल्ड यू, इट इज बेस्ड ऑन अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, नॉट प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। प्रैक्टिकली पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव नहीं कर सकते एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। जो चार्जेस फ्लो होते हैं वो नेगेटिव चार्जेस होते हैं, प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। लेकिन ये थियोरेटिकल डेफिनेशन है और ये थियोरी पे बेस्ड है, जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी। ठीक है, तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। कितना वर्क डन करना पड़ता है एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करने के लिए, वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब देखो चार्ज को मूव करना जरूरी है, क्योंकि चार्ज मूव नहीं होगा तो चार्ज स्टैटिक हो जाएगा, स्टेडी हो जाएगा। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर का नाम है ना, उसमें चार्जेस हमेशा फ्लो होते रहते हैं। चार्जेस कभी स्टेशनरी नहीं रहते, दे ऑलवेज कीप ऑन फ्लोइंग। ठीक है, अगर चार्जेस फ्लो हो रहे हैं तो चार्जेस को फ्लो करने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ता है। इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है। पोटेंशियल डिफरेंस का जो दूसरा नाम है वो है वोल्टेज। तुमने सुना होगा वर्ड वोल्टेज, सुना है? वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा है, वोल्टेज कम है, वोल्टेज ज्यादा है ना? ये वोल्टेज क्या है? ये वोल्टेज ही रिस्पॉन्सिबल है जिससे करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। अगर वोल्टेज नहीं होता तो करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो आज तुम्हें गर्मी में बैठ के ये क्लास भी नहीं कर सकते थे तुम, वो भी मैं भूल गया, क्योंकि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, तुम्हारी सारी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स इलेक्ट्रिक करंट पे चलती है, और इलेक्ट्रिक करंट विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो सकता। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज मस्ट। अब पोटेंशियल डिफरेंस का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल अगर मैं तुम्हें बताऊं तो पोटेंशियल डिफरेंस का एग्जांपल है तुम्हारा छोटा सा पेंसिल सेल जो 1.5 वोल्ट का होता है। सो दैट आल्सो हैज पोटेंशियल डिफरेंस, इट आल्सो हैज द पोटेंशियल टू डू वर्क। ठीक है, मतलब अगर पेंसिल सेल को तुम तुम्हारे रिमोट में डालोगे, रिमोट चलता है। ठीक है, उसको स्पीकर में डालोगे, स्पीकर चलता है। उसको तुम अलग अलग इक्विपमेंट में डाल के यूज कर सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस को। किसके? वो सेल के। तो सेल से लेके तुम्हारे इलेक्ट्रिक सप्लाई सबके पास पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टेज होना जरूरी है। वोल्टेज होगा तो इलेक्ट्रिसिटी होगी। वोल्टेज रीजन है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का, वोल्टेज के बिना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती। तो ये मुझे अपने तरफ से कुछ बोलना था ताकि ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज होता है। ठीक है, सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द सिंबल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? चारुल जी, सिंबल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सॉरी, या प्लीज चारुल। Sir, V. Yes, very good. The symbol of potential difference is V. I think lag है, आवाज में डिले हो रहा है, कोई बात नहीं। What is the formula for potential difference? चारुल। V is equal to W by Q. Very good. V is equal to W by Q. यहाँ पे W क्या होता है बेटा? The work done. Very good. W is the work done in moving the charge. और Q क्या होता है? Charge. Q होता है चार्ज। वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अब मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, तो आई गो टू द नेक्स्ट पर्सन, प्रियांश। मिस्टर प्रियांश गुप्ता, प्लीज सामने आ जाइए। अर्नब गोस्वामी, इंडिया, आंसर्स। Yes. Priyansh, can you please tell me work done का ऐसा यूनिट क्या है? जूल। Very good. work done का ऐसा यूनिट है जूल। और चार्ज का ऐसा यूनिट जो हमने अभी डिस्कस किया? कूलॉम। करेक्ट, कूलॉम। अच्छा, तो वर्क डन का ऐसा यूनिट है जूल, चार्ज का ऐसा यूनिट है कूलॉम। तो पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट हो जाएगा जूल पर कूलॉम। सही बात है कि नहीं? यस सर। ये जूल, यस, वेरी गुड। तो ये जूल पर कूलॉम को एक नया नाम दिया गया है, दैट इज ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इज वोल्ट। क्या बोलते हैं उसको?
वोल्ट, जिसको बोलते हैं हम वोल्ट। सही है, वेरी गुड। तो ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट है। नाउ मिस्टर प्रियांश गुप्ता, यू हैव टू डिफाइन 1 वोल्ट। 1 volt. The 1 volt. One joule of work done. When 1 joule of work done. Yes, you are right. Correct. When 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge, yes, then 1 volt of potential difference is there between 2 points. Yes. See, तो कैसे बोलना है इसको पूरा मैं तुम्हें बताता हूँ। पूरा जो 1 वोल्ट का, सॉरी फ्रेमिंग नहीं आया मुझे इसका। हाँ, फ्रेमिंग हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। अपने को सिर्फ डेफिनेशन, सॉरी फॉर्मूला देखना है। फॉर्मूला देख के हम फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे शुरुआत करनी है इसकी? एवरीवन प्लीज नोटेड, potential difference between 2 points is said to be 1 volt. Potential difference between 2 points is said to be 1 volt. When 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from one point to the other, 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट तभी होता है जब 1 जूल ऑफ वर्क डन करना पड़ता है। क्या करने के लिए? चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करने के लिए। When 1 joule of work is done in moving the charge from one point to another, then the potential difference between these 2 points is said to be 1 volt. ये 1 volt की डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है, ये याद रखना है तुम्हें। ठीक है? यस सर। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। शिखा, कैन यू हियर मी? शिखा, okay, Shikha is absolutely in samadhi mode today, cannot hear me. I'll come back to Aditi. Yes, sir. Yes, Aditi, the next question for you is define electric current. What is electric current? Sir, the electric current is the flow of an electric charge through a particular area. Yes. Particular area In unit time. in unit time. Yeah. So flow of charges per unit time through an area of cross section of a conductor is known as electric current. Electric current is the flow of charges through the cross section of a conductor in a unit time. मतलब इलेक्ट्रिक करंट चार्जेस कितने फ्लो हो रहे हैं कितने टाइम में, उसका वैल्यू। इलेक्ट्रिक करंट इज द नंबर ऑफ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन गिवन टाइम। ठीक है? अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या है ये बताओ अदिति। कैपिटल आई। वेरी नाइस। और इसका फॉर्मूला क्या है? I which is equal to Q upon T. Yes, I is equal to Q by T. Okay. और इसका SI यूनिट क्या है? Ampere. Ampere named after an Italian scientist. ठीक है? इसका SI यूनिट एम्पियर है। मुझे बताओ अदिति, इसके SI यूनिट का सिंबल क्या है? एम्पियर का सिंबल क्या है? Capital A. Very nice. Very good. चलो next I am going to go to who is next? Mrinmay, can you hear me? Yes, sir. Mrinmay, can you please define 1 ampere for me? Current flowing through a wire is said to be 1 ampere when 1 coulomb of charge flows through it in 1 second. Perfect. When 1 coulomb of charge flows through a given cross section of conductor in 1 second, then the current flowing through that conductor is said to be 1 ampere. Perfect definition. Very nice. Okay. Next question. आप Mrinmay तुम ही बताओ, how is potential difference measured? Potential difference is measured in voltage. Okay, but how it is measured? With using what? Voltmeter.
Yes, it is measured using voltmeter. कैसे मेजर करते हैं, क्या यूज करते हैं इसको मेजर करने के लिए? वोल्टमीटर. ठीक है. Name the instrument. Voltmeter. Yes. And how it is connected in electric circuit? Mrinmay? So it is connected to the wires so to check the voltage. But how it is connected? Sir, may I? Yes. It is connected in parallel. Very good. It is connected in parallel. अब ये जो है पैरेलल और सीरीज, ये हम लोग पढ़ने वाले डिटेल में इस चैप्टर में. लेकिन इसका मीनिंग क्या है पैरेलल और सीरीज का, ये तुम पता लगा लो. सपोज एक सर्किट है, ठीक है, ये सर्किट में ये रजिस्टर है और यहाँ पे की है, यहाँ पे बैटरी है. ठीक है. अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो मैं इसे अलग से पैरेलली इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करूंगा, वोल्टमीटर, जिसका जो टर्मिनल्स होंगे नेगेटिव टर्मिनल्स है यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव टू पॉजिटिव कनेक्ट करके मैं वोल्टेज को चेक कर सकता हूँ अक्रॉस दिस रेजिस्टर. ठीक है. सो इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल. रिमेंबर दैट इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल. विल यू बी एबल टू रिमेंबर, Mrinmay? Okay, next Siddhi. Can you please answer how electric current is measured? Sir, electric current is measured by ammeter. Okay, it is measured using ammeter. Very good. Ammeter एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसको यूज करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं. कैसे इसको कनेक्ट किया जाता है सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में? It is connected in series. Very good. It is connected in series. मतलब अगर मुझे इलेक्ट्रिक करंट मेजर करना है किसी भी सर्किट में, तो मैं उस सर्किट में कनेक्ट करूंगा तुम्हारा एमीटर को सीरीज में. तो जस्ट सी हाउ आई एम गोइंग टू डू इट. Wait. Let me just redo this and remove this part. Yes. This is easy. So I'm going to draw a key here which is closed, let's say, and then here I'm going to connect ammeter. ठीक है. और एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, नेगेटिव इधर. और ये तुम्हारा की है, ये तुम्हारा बैटरी है, ये रेजिस्टर है, ये वोल्ट मीटर है, ये एमीटर. और करंट का फ्लो का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव. ठीक है. सो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. देखो, मैं तुम्हें एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में कुछ और जानकारी देना चाहता हूँ. तो एमीटर को सीरीज में इसलिए कनेक्ट किया जाता है बिकॉज हमें चाहिए कि मैक्सिमम करंट उसके थ्रू फ्लो करे. व्हेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू द एमीटर, तब क्या होता है कि वी कैन मेजर दैट करंट एक्यूरेटली. करंट को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट उसके थ्रू फ्लो होना जरूरी है. ठीक है. लेकिन एक और बात याद रखो, वोल्ट मीटर को हम सीरीज में कनेक्ट नहीं करते बिकॉज वोल्ट मीटर में से मैक्सिमम करंट को फ्लो नहीं करवाना. वोल्ट मीटर हमें डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बताता है. तो इसीलिए वोल्ट मीटर को हम लोग कनेक्ट करते हैं पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे तो उसके थ्रू मैक्सिमम करंट फ्लो नहीं होगा. और वो क्या बताएगा कि किसी रेजिस्टर के अक्रॉस या किसी डिवाइस के अक्रॉस कितना डिफरेंस है चार्जेस का. चार्जेस का डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है. सो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वी डू नॉट वांट मैक्सिमम करंट टू फ्लो थ्रू द वोल्ट मीटर. एंड दैट्स व्हाई एक चीज मैं बताता हूं तुम्हें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो वोल्ट मीटर होता है, इट हैज गॉट हाई रेजिस्टेंस. शायद तुमने लिखा होगा अपनी नोट्स में, लेकिन इसको याद रखना, हाई रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस क्या होता है ये हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. रेजिस्टेंस मतलब रुकावट के लिए खेद है.
ठीक है, रुकावट मतलब रेजिस्टेंस मतलब करंट को रोका जाता है डेलिबरेट। तो वोल्ट मीटर के पास हाई रेजिस्टेंस होता है सो दैट इट एक्यूरेटली मेजर्स द वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। बट एमीटर खास करके ऐसे बनाया जाता है ताकि उसके पास हो लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस इसलिए क्योंकि हमें करंट को अलाउ करना है उसके थ्रू फ्लो होने के लिए। वी हैव टू अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू इट, वी कैन नॉट मेक इट हाई रेजिस्टेंस, सो वी मेक इट लो रेजिस्टेंस। ठीक है, रुकावट कम रहती है वहाँ। ओके, सो दैट्स वन मोर इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट योर एमीटर। ठीक है, नेक्स्ट वन टू डिस्कस विद मी इज कनिष्का। Yes, sir. Kanishka, what is conventional current? Sir, conventional current is charge per unit transported in certain direction. Okay, which direction beta? Sir, positive to negative. Excellent. Conventional current is the current flowing from positive to negative direction. Every circuit diagram which you will have in your book, every circuit diagram in any book of physics or electricity always denotes or always shows conventional current. ये जो कन्वेंशनल वर्ड है, ये कन्वेंशनल वर्ड मैंने तुम्हें बताया था वीडियो में, ये वर्ड आया है और एक वर्ड से जिसको हम बोलते हैं कन्वीनियंट मतलब क्या है? हमारे लिए कन्वीनियंट है। ठीक है, एक रूटीन है, कन्वीनियंस है हमारे लिए कि हम बोल सकते हैं कि करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। ये क्यों ऐसा रूटीन और कन्वेंशन बन गया? क्योंकि पहले के साइंटिस्ट जिनको इलेक्ट्रॉन्स का कोई पता नहीं था, इलेक्ट्रॉन्स होता है या चार्जेस नेगेटिव या पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव चार्जेस फ्लो करते हैं, ऐसा कोई नॉलेज नहीं था। इन्होंने मान लिया था कि पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं और इसीलिए करंट की जो फ्लो की डायरेक्शन है उन्होंने रख दी पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो तब से एक कन्वीनियंस हो गया सबके लिए कि करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो करता है। इसलिए कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन है वो कहां से कहां होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, कन्वेंशनल करंट is the current flowing from positive terminal to the negative terminal. ठीक है, it is believed that positive charges constitute the conventional current. ठीक है, next question I am going to ask to Charul. Yes, sir. Charul, what is electronic current? इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है? So the direction of the electronic current is from negative to positive. Yeah, but what is electronic current? Electronic current is the current constituted by electrons. Electrons के flow को electronic current बोलते हैं। Can you repeat that, Charul? Yes, sir. So the electronic current is the current which is flowed by electrons. No, you have to say that the current which is denoted by the flow of electrons or the current which constitutes the flow of electrons is known as electronic current, and its direction is from negative terminal to positive terminal, and this is the actual current which is flowing. यही actual current flow करता है सर्किट में। ठीक है, सर्किट में जो रियल करंट फ्लो करता है वो होता है कन्वेंशनल करंट। इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम negative terminal to positive terminal, and it is nothing but the flow of electrons. So electronic current is the actual current which flows in a circuit, लेकिन हम वो दिखाते नहीं, हम सिर्फ conventional current दिखाते हैं for our own convenience। and क्योंकि ऐसे पहले से ऐसा चला आ रहा है, रिवाज चला आ रहा है, तो उसको हमें तोड़ना नहीं है, कन्वीनियंस है, तो उसको चलते रहने देंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रियांश। Yes, sir. The final question is for you. Name the major components of electric circuit.
So, electric circuit consists of a cell, ओके connecting wires. एक मिनट, that connect सेल all the- सेल का या बैटरी का फंक्शन क्या है वो भी बताओ साथ साथ। So, it provides current. नो, इट प्रोवाइड्स पोटेंशियल डिफरेंस। It provides potential difference due to which current flows in the circuit. Then it consists of a switch that regulates the potential difference. Wait. Switch just controls whether the circuit should be on or off. Switch is used to on or off the circuit. ठीक है? सिर्फ ऑन और ऑफ है उसका फंक्शन। अच्छा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कनेक्टिंग वायर्स? So they connect all the components of the electric circuit together. And they yes, they allow the electric current to flow through them, and that's why they should be made up of conductors or metallic wire. yes. So which is the good conductor? Can you tell me a good conductor's example? Copper. Okay, wire. very nice. Copper wire is a very widely used good conductor. Other good conductors are silver, which is the best conductor, but it's very expensive. One more good conductor is aluminium. It's a good conductor. Its wires are also used. Acha, what is the use of ammeter? So the use of ammeter is to measure the Electric current. So I have a doubt. Yes. So can you explain the potential difference after this question? I can explain potential difference. But what exact explanation you require, you have to ask me now. Sir, मुझे practically आपने बोला ना वो practical, मुझे वो practically समझ नहीं आया। क्या प्रैक्टिकल? सर आपने बोला था कि वो जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थियोरेटिकल है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस प्रैक्टिकल है, लेकिन वो मुझे उसको प्रैक्टिकल मतलब समझ ही नहीं आया। वो दो कंटेनर है, समझ लो। इसमें पानी भरा है यहाँ से और इसमें पानी भरा है यहाँ। तो ये पानी कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? फ्रॉम हायर टू लोअर। और अगर ये दोनों कंटेनर में पानी का लेवल सेम है तो क्या पानी फ्लो करेगा? नो सर। अच्छा, इसका मतलब है कोई भी फ्लो के लिए डिफरेंस इन लेवल होना जरूरी, राइट? तो एक सर्किट में करंट कब फ्लो करेगा? जब चार्जेस का डिफरेंस इन लेवल हो, राइट? तो ये चार्जेस का डिफरेंस इन लेवल कौन क्रिएट करता है? बैटरी। तो बैटरी में ऐसा बोला जाता है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहां पे ज्यादा चार्जेस है और नेगेटिव टर्मिनल पे कम चार्जेस है। ये इसका थियोरेटिकल या फिर कन्वीनियंट या फिर कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट, ठीक है? जनरली बैटरी में नेगेटिव टर्मिनल पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पॉजिटिव पे कम होते हैं और ये फ्लो करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। और ये कब तक फ्लो करते हैं? ये तब तक फ्लो करते हैं जब तक बैटरी डिस्चार्ज नहीं होता। बैटरी डिस्चार्ज हो जाना मतलब क्या है? उसमें इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, ऐसा होता है क्या? सर जो उसके अंदर का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो खत्म हो जाता है। नहीं, खत्म नहीं होता है। इलेक्ट्रोलाइट कभी खत्म नहीं होता। सिर्फ इतना होता है कि जो चार्जेस है वो दोनों टर्मिनल्स में इक्वल हो जाते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे पानी का लेवल सेम हो गया, वैसे ही चार्जेस दोनों टर्मिनल पे इक्वल हो जाते हैं। जितने नेगेटिव चार्ज नेगेटिव टर्मिनल पे, उतने ही नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल पे जब आ जाते हैं तो वो बैटरी में करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, ठीक है? तो इसका मतलब है उसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस का यही मतलब है द डिफरेंस इन कैपेबिलिटी, द डिफरेंस इन कैपेबिलिटी ऑफ टू टर्मिनल। जब तक ये डिफरेंस इन कैपेबिलिटी मेंटेन रहेगा तब तक चार्जेस फ्लो होते रहेंगे। इसलिए हर बैटरी का एक टाइम लिमिट होता है, उसके बाद या तो ये काम करना बंद कर देती है या तो तुम्हें उसको रिचार्ज करना पड़ता है। ये है पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट। अब तुम्हें क्वेश्चन क्या है? सर क्वेश्चन ये है कि इसका आपने जो ये फॉर्मूला बनाया वर्क पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज। यस। तो सर ये कैसे बनाया? ये क्वेश्चन है।
ओके, बहुत सिंपल है ये तो। सपोज ये दो पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, और एक चार्ज है मेरे पास यहाँ पे रखा है। इसको चार्ज को यहाँ से लेके यहाँ पे लेके जाना है मुझे, ठीक है, मतलब चार्ज को फ्लो करवाना है। तो चार्ज को फ्लो करने के लिए डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कौन करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस तो बैटरी क्रिएट करेगी। अब बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट करेगी? उसके एक टर्मिनल पे ज्यादा चार्जेस और दूसरे पे कम चार्जेस होने चाहिए। अच्छा, जब ये चार्जेस का डिफरेंस क्रिएट होता है तो बैटरी के अंदर कौन सा चेंज होता है? केमिकल चेंज होता है। कौन सा चेंज होता है? केमिकल चेंज। अब ये केमिकल चेंज याद रखना केमिकल एनर्जी से आता है, ठीक है। और केमिकल एनर्जी जब यूज होती है तो वर्क डन होता है। केमिकल एनर्जी जब यूज होती है सेल में तो क्या होता है? वर्क डन। अब ये वर्क डन क्या करता है? इस चार्ज को पुश करता है। कहां से कहां? ए टू बी। सो बेसिकली हम चार्ज को ए टू बी पुश करने के लिए वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और वो वर्क करने से वो चार्ज ए टू बी चला जाता है। मतलब दो चीजें हो रही है पोटेंशियल डिफरेंस में, एक तो वर्क डन हो रहा है और चार्ज मूव हो रहा है। इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला है वो ये दो कंपोनेंट से बना है। potential difference between 2 points is equal to work done upon charge moved। वर्क डन हुआ और वो वर्क डन किसके लिए हमने किया? चार्ज को मूव करने की। समझ में आया तुमको? यस सर, लेकिन वर्क इज इक्वल टू मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ बिल्कुल, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो सर ये फोर्स कहाँ से आया? यही तो है यही फोर्स। ये ए फोर्स हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से आया। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने जनरेट किया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया हमारी बैटरी ने या सेल ने, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फोर्स जो क्रिएट होता है वही ये वर्क डन करता है। और इलेक्ट्रिक फोर्स इज रिस्पांसिबल फॉर दिस वर्क डन, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट। सो हमारा जो एनर्जी है जो यहाँ पे वर्क डन करने के लिए रिस्पांसिबल है, दैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें मिला कहाँ से? केमिकल एनर्जी। सो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट करता है, वो फोर्स से चार्ज का डिस्प्लेसमेंट होता है और वर्क डन होता है। और वो वर्क डन जब होता है तो हम बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। ओके सर, ये है इसके पीछे का पूरा कहानी। समझ में आया अभी? यस सर, ग्रेट। ओके, अब मुझे बताओ कि मेजर कंपोनेंट। हाँ, ये रेजिस्टर का क्या काम है यार ये कंपोनेंट में प्रियांश? सर इट वो लोड की तरह एक्ट करता है। हाँ, वो सर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को स्लो करने का ट्राई करता है। बट उसको लगाते क्यों है? अपने को क्यों स्लो करना है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को? उसमें मतलब हम एक बल्ब लगा सकते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि वो फ्लो हो रहा है या नहीं। सो बेसिकली रेजिस्टर इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रिक डिवाइस। रेजिस्टेंस क्या है? इलेक्ट्रिक डिवाइस है। इलेक्ट्रिक डिवाइस क्या करता है? इट कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। अगर तुम्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, तुम्हें लाइट एनर्जी चाहिए तो बल्ब लगा दो। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से तुम्हें कन्वर्ट करना है साउंड एनर्जी में तो स्पीकर लगा दो। तो ये लाइट, ये बल्ब, ये स्पीकर, ये सब क्या है? दीज आर ऑल रेजिस्टर्स। दे ऑल यूज अप इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड दे कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू डिजायर्ड फॉर्म। तुम्हें मैकेनिकल एनर्जी चाहिए, हवा चाहिए तो फैन लगा दो। फैन भी रेजिस्टर है, बल्ब भी रेजिस्टर है, स्पीकर भी रेजिस्टर है। ऐसे बहुत सारे रेजिस्टर आते हैं। तो whatever energy you require, you can get it converted into that desired form using a suitable device and electricity. And that's why electricity is one of the most important form of energy because you can use it for any purpose. तुम्हारे घर पे without electricity काम कैसे रुक जाता है तुम सबको पता है, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ना समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। And we are, you can say, almost reaching the middle way of the chapter, midway of the chapter. अच्छा, तो मैं तुम्हें सबको बताना चाहता हूँ कि जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, that is known as resistance. तो मेरे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, that will be based on the topic of resistance, ठीक है। इसका एक वीडियो है, सिंगल वीडियो है, 1 घंटे का है। ये आज मैं तुम्हें देने वाला हूँ एज अ टास्क to watch, to make notes and to prepare
फॉर टुमारो, ठीक है, कल के लिए प्रिपेयर करने के लिए मैं आज देने वाला हूँ ये वीडियो। मैं तुम्हें बता देता हूँ कहाँ तक मैंने पढ़ा, ये सब मैंने पढ़ाया था। यस, तो यहाँ से मैं तुम्हें वीडियो देने वाला हूँ आज, जिसको बोलते हैं ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ रेजिस्टेंस को समझाता है, रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट, इन तीनों का रिलेशनशिप समझाता है हमें, ठीक है। फिर रेजिस्टेंस के बारे में और बात करेंगे हम लोग, फैक्टर्स जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है उस पर बात करेंगे हम लोग उस वीडियो में। और एक टर्म है रेजिस्टिविटी, जो एक मटेरियल पे डिपेंड करता है, उस पे उसमें बात की, ठीक है। बस फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर अगले पार्ट में है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वीडियो का, दैट इज गोइंग टू बी ओम्स लॉ या फिर रेजिस्टेंस। यहाँ से ये तुम्हें मैं आज देने वाला हूँ, ठीक है। सो दैट टुमारो वी कैन फिनिश दिस पार्ट एंड 50% ऑफ द चैप्टर विल बी ओवर टुमारो, ठीक है। एंड स्लोली हम लोग और भी एक्सप्लोर करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी एक्सप्लोर करेंगे। अभी तो मैं थियरी पे फोकस कर रहा हूँ तुम्हारी, न्यूमेरिकल्स तो तुम देख ही रहे हो साथ में, पता है तुम्हें कैसे सॉल्व करना है, फॉर्मूले क्या है। इट इज कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड, इट इज नथिंग फैंसी, ओके, वेरी मच फॉर्मूला बेस्ड। बट जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे तो हम वो भी सॉल्व करेंगे लाइव क्लास। तुम सीखोगे वीडियो में और लाइव क्लास में भी तुम सीखोगे, रिविजन होगा उसका। सो दिस इज काइंड ऑफ अ रिविजन which we are doing again for the topics which you have studied, ठीक है। सो आई होप it is extremely clear कि मुझे क्या चाहिए और कैसे काम करना है तुम लोगों को, ठीक है। Okay guys, so now we will do a little bit of maths, ठीक है। Are you all ready for maths? Stop this.